Another big issue, and this is about what's happening within the INDIA bloc. Lalu Prasad Yadav has also thrown his weight behind Mamta Banerjee, urging INDIA to make her the leader despite Congress party's disapproval. Lalu has suggested that Mamta Banerjee should take charge, leaving Rahul Gandhi's leadership hopes in question. Now, this is quite interesting, viewers, because earlier we have seen senior leaders like Sharad Pawar, his daughter Supriya Sule, also in a way supporting that Mamta is the right person to lead the India bloc, and this clearly has raised several questions on the capability of Rahul to be the face of the opposition when it comes to fighting the BJP at the national level as far as the INDIA bloc is concerned. Listen into this reaction coming in from Lalu Prasad Yadav. कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दो। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। So there you have the first reaction coming in from RJD's Lalu Prasad Yadav as well. He clearly said that Congress party's objection means nothing. We will support Mamta Banerjee. Mamta Banerjee should be given the leadership of the India bloc. So clearly, one after the other, Mamta Banerjee is getting support from allies of the grand old party in the India alliance. But it is the Congress leaders who still remain, in fact, in a state of denial. Remember, when first time in the parliament, Kirti Azad had spoken about the fact that how Mamta Banerjee is the right person to lead the India bloc, especially after seeing the debacles in Haryana and Maharashtra as far as the India bloc is concerned. At that time, Congress party's Manikam Tagore had said that that's a good joke. He dismissed it. And then we have other leaders from the Congress camp only trying to suggest that Rahul Gandhi has been the leader of the India bloc and he will continue to remain so. This was a reaction from Ajay Rai of the Congress party, the Uttar Pradesh Congress chief. This is what he had to say when Mamta Banerjee herself had thrown her hat into the ring, saying that if given an opportunity, she is ready to lead the India bloc. So on one hand, Rahul Gandhi's leadership is not really getting enough support from the allies of the grand old party within the India bloc. On the other hand, the support for Mamta Banerjee is continuously rising. She first spoke about that how she is ready, and then she got support from Sharad Pawar. In fact, parties like Samajwadi Party as well are not really, averse to this particular idea of having Mamta Banerjee as the leader of the India bloc to fight the Bharatiya Janata Party. Saket is now joining us live for more on this. Saket, support continuously pouring in for Mamta Banerjee to take over the reins of the India bloc, and this time from Lalu Prasad Yadav himself. देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस के खिलाफ एक एक करके तमाम पार्टियां खड़ी हो रही है और यही वजह है कि आज लालू यादव ने इस ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले सवाल पर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। इसका साफ मायने इसका निकाल सकते हैं कि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन की हार हो रही है, राज्यों में हो रही है, केंद्र में भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा जिस तरह से सरकार बनाने के दावे इंडिया गठबंधन की तरफ से किए जा रहे थे। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो घटक दल है वो अब कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरा एक और जो वजह इसके पीछे है वो लालू यादव, चूंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में, तो ऐसे में अभी से कांग्रेस को अगर दबाव में आरजेडी नहीं रखेगी तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस लगातार ये बात कहती है कि आरजेडी के आसपास सीट कांग्रेस को भी बिहार में चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश लालू यादव का इस बयान के जरिए कांग्रेस पर है। अब देखना होगा लालू यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद क्या कुछ सामने आता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि लालू यादव और ममता बनर्जी के जो रिश्ते रहे हैं शुरू से, चाहे वो इंडिया ब्लॉक जब बना था उस दौरान भी, जब बिहार में पहली बैठक हुई थी उस दौरान भी
जो ममता बनर्जी यहां पर पहुंची थी तो लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, पर्सनल लेवल पर भी उन दोनों की बातें होती रहती है। तो ऐसे में लालू यादव अब उनके साथ खड़े हैं। अब देखना होगा इस पर जो इंडिया ब्लॉक के और भी जो गठबंधन के दल हैं वो क्या कुछ इस पर कहते हैं। तो साकेत, आप हमें ये बता रहे हैं कि ये जो बयान आया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, इसके दो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो है निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि एक बिल्कुल सीधे तौर पर सपोर्ट आ रहा है ममता बनर्जी की लीडरशिप को लेकर, अगर आरजेडी की बात की जाए इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप पर। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो है एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहेगा बिहार इलेक्शन में, क्योंकि शायद उन्होंने अपने लेसन सीख लिए हैं महाराष्ट्र से और हरियाणा से, जहां पर कांग्रेस की जो हालत रही उससे एलाइज को खास करके काफी ज्यादा अब उम्मीद नहीं है कांग्रेस पार्टी से अंडर राहुल गांधी लीडरशिप। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि लालू यादव खुलकर इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले तेजस्वी यादव इस पर बयान देते हैं और वो कहते हैं कि बैठकर इस पर बात होगी इंडिया गठबंधन के दलों के साथ। लेकिन लालू यादव आज सुबह सुबह इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जब सीट शेयरिंग का मामला बिहार में आएगा तो ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश ये लालू यादव की तरफ से है, क्योंकि लालू यादव राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं और उनको पता है कि वो कब क्या बोले, क्या एक्शन ले जिसका असर होगा उनके सहयोगियों पर, और वो बार्गेनिंग करने में आगे रहे, उनका हाथ ऊपर रहे हमेशा। इस कोशिश में लालू यादव शुरू से रहते हैं और ये बात कई बार कई चुनावों में दिखा भी है। तो ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ऐसे में कांग्रेस को कैसे अपने नीचे रखा जाए, कैसे उसको दबाव बनाकर रखा जाए कांग्रेस पर, ये कोशिश आरजेडी की तरफ से और खास करके लालू यादव के इस बयान के बाद सामने आने लगी। It now seems as Prime Minister Modi has said several times, Congress party is like Parjivi for its allies. That's something that allies have now begun to realize as well.